Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now students, as you know, this is your social science class and today we will read class 7 social science our past volume 2 history and chapter number 9. Okay, and the chapter number 9 is the making of regional cultures. All right, and today we have to start from page number 130. All right students, page number 130, and this is video 4. All right, video 4. So let's start students. द क्लोज़र लोग बंगाल। अब हम आज पढ़ेंगे बंगाल का एक नज़दीकी नज़र से बंगाल के बारे में। ठीक है, तो बंगाल नज़दीक से एक नज़र। द ग्रोथ ऑफ अ रीजनल लैंग्वेज। ओके, ग्रोथ मीन्स विकास, रीजनल लैंग्वेज क्षेत्रीय भाषा। ओके, तो एक क्षेत्रीय भाषा का विकास। ऑल राइट, एक क्षेत्रीय भाषा का विकास। चलिए पढ़ते हैं। As we saw that the outset, we often tend to identify regions in terms of the language spoken by the people. So we assume that people in Bengal always spoke Bengali. However, what is interesting is that while Bengali is now recognized as a language derived from Sanskrit, early Sanskrit text mid first millennium BCE suggest that the people of Bengal did not speak Sanskritic languages. How then did the new language emerge? Okay. So students, let's read about the growth of the regional language. कैसे एक क्षेत्रीय भाषा का विकास हुआ. Okay, as we saw the outset, we often tend to identify regions in terms of the language spoken by the people. जैसा कि हमने प्रारंभ में देखा था कि हम अक्सर क्षेत्रों के नाम वहाँ के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के अनुसार निर्धारित करते हैं। जैसे अगर कोई गुजराती बोल रहा है तो हमें समझ आता है कि ये गुजरात से बिलोंग करता है। ओके, कोई अगर बिहारी बोल रहा है तो हम समझ जाते हैं कि ये बिहार से बिलोंग करता है। ओके, कोई उड़िया बोल रहा है तो हम समझ जाते हैं ये उड़ीसा से बिलोंग कर रहा है। तो ऐसे ही हम किसी भी क्षेत्र में वहाँ के जो लोग जिस भाषा को बोलते हैं उससे हम पता लगाते हैं कि ये किस क्षेत्र के लोग हैं। ओके, so we assume that people in Bengal always spoke Bengali. ओके, इसलिए हम यह मान लेते हैं कि बंगाल में लोग हमेशा बंगला भाषा ही बोलते हैं या बंगाली भाषा ही बोलते हैं। However, what is interesting is that while Bengali is now recognized as a language derived from Sanskrit, early Sanskrit text mid first millennium BC suggest that the people of Bengal did not speak Sanskritic languages. Okay, तो हाउ देन डिड द न्यू लैंग्वेज इमर्ज। ओके, किंतु एक दिलचस्प बात यह है कि आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। ठीक है, जो लोग भी बंगाली बोलते हैं तो यह बात पता चली है कि आज जो है बंगाली भाषा हम किसे कहते हैं कि वो संस्कृत से ही निकली हुई भाषा है, क्योंकि प्रारंभिक ईसा पूर्व प्रथम सहस्राब्दी, ठीक है, ईसा पूर्व BCE बिफोर क्रिश्चियन एरा। ठीक है, तो ईसा पूर्व प्रथम सहस्राब्दी के मध्य भाग में संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से यह पता चला है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे। तो फिर नई भाषा का उद्भव कैसे हुआ? हाउ देन डिड द न्यू लैंग्वेज इमर्ज, तो कैसे ये नई भाषा आई? ओके, तो देखते हैं। फ्रॉम द 4th-3rd century BC, okay, commercial ties began to develop between Bengal and Magadh, South Bihar, which may have led to the growing influence of Sanskrit. During 4th century, the Gupta rulers established political control over North Bengal and began to settle Brahmanas in this area. Thus, the linguistic and cultural influence from the mid-Ganga valley became stronger.
In the 7th century, the Chinese traveler Xuanzang observed that languages related to Sanskrit were in use all over Bengal. Okay, so from the 4th 3rd century BCE. ओके, तो BC मीन्स होता है स्टूडेंट्स बिफोर क्रिश्चियन एरा, ऑलराइट, ईसा पूर्व। तो ईसा पूर्व चौथी तीसरी शताब्दी से बंगाल और मगध, ठीक है, बंगाल और मगध यानी दक्षिण बिहार की बात हम कर रहे हैं, बंगाल और मगध के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित होने लगे थे, वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे थे, जिसके कारण संभवतः संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया होगा, विच मे हैव लेड टू द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ संस्कृत। शायद इसकी वजह से संस्कृत का प्रभाव बढ़ता चला गया। ड्यूरिंग द 4th century, द गुप्ता रूलर्स established political control over North Bengal and began to settle Brahmanas in this area. चौथी शताब्दी के दौरान जो गुप्त वंशीय शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया और वहाँ पर उन लोगों ने ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। Thus, the linguistic and cultural influence from the mid-Ganga valley became stronger. In the 7th century, the Chinese traveler Xuanzang observed that languages related to Sanskrit were in use all over Bengal. Okay, तो इस प्रकार गंगा की जो मध्य घाटी थी, तो मध्य घाटी के जो भाषाई और सांस्कृतिक प्रभाव और अधिक मजबूत होते चले गए और 7वीं शताब्दी में जो चीनी यात्री हुएनसांग थे, उन्होंने यह पाया कि बंगाल में सबसे ज़्यादा संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा था। ठीक है, तो किस प्रकार से बंगाल में संस्कृत का प्रभाव बढ़ा, क्योंकि ईसा पूर्व चौथी से तीसरी शताब्दी से बंगाल और मगध के बीच क्या हुए थे, व्यापारिक संबंध स्थापित हुए थे, तो जिसके कारण संभवतः संस्कृत का प्रभाव बढ़ा होगा। ठीक है, और स्टूडेंट्स चौथी शताब्दी के दौरान जो गुप्त वंशीय शासक थे, उन्होंने उत्तरी बंगाल पर अपना कंट्रोल कर लिया था, अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया था और फिर उन्होंने वहाँ पर ब्राह्मणों को सेटल करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार गंगा की मध्य घाटी के भाषाई तथा सांस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल हो गए और 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने यह पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा था। ओके, From the 8th century, Bengal became the center of a regional kingdom under the Palas. Chapter 2. Between the 14th and 16th centuries, Bengal was ruled by sultans who were independent of the rulers in Delhi. Okay. In 1856, when Akbar conquered Bengal, it formed the nucleus of the Bengal Suba. While Persian was the language of administration, Bengali developed as a regional language. Okay, from the 8th century, 8वीं शताब्दी से बंगाल became the center of regional kingdom under the Palas. ठीक है, तो 8वीं शताब्दी से जो पाल शासक थे, पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य का उद्भव हो गया, एक क्षेत्रीय राज्य हुआ, वहाँ पे समृद्ध हुआ। बिटवीन द 14th एंड 16th सेंचुरी, 14वीं और 16वीं शताब्दी के बीच में बंगाल was ruled by sultans who were independent of the rulers in Delhi. Okay, और 14वीं और 16वीं शताब्दी में, ठीक है, 14वीं से 16वीं शताब्दियों के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा, जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे। ओके, वे क्या थे, स्वतंत्र थे। 1856 में व्हेन अकबर कन्क्वायर्ड बंगाल, जब अकबर ने बंगाल पर अपना नियंत्रण कर लिया, ठीक है, जब अकबर ने बंगाल पर अपना नियंत्रण किया, उसको जीत लिया, सो इट फॉर्म्ड द न्यूक्लियस ऑफ द बंगाल सूबा, और उस समय वह बंगाल क्या कहलाया जाने लगा, सूबा माना जाने लगा, क्योंकि 1856 में अकबर ने इस प्रदेश को जीत लिया था, तो उसे क्या माना जाने लगा, सूबा माना जाने लगा। वाइल पर्शियन वॉज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, और इस प्रकार से फारसी भाषा में वहाँ पर प्रशासन होने लगा। उस समय प्रशासन की भाषा क्या थी, फारसी थी। बंगाल डेवलप्ड एज अ रीजनल लैंग्वेज, लेकिन बंगाली को वहाँ पर एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित किया गया। ठीक है, बंगाली को कैसे विकसित किया गया, एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में। ओके,
In fact, by the 15th century, the Bengali group of dialects, okay, the Bengali group of dialects came to be united by a common literary, okay, by common literary. Yes, okay, literary language based on the spoken language of the western part of the region, now known as West Bengal. Thus, although Bengali is derived from Sanskrit, it passed through several stages of evolution. Also, a wide range of non-Sanskrit words derived from a variety of sources, including tribal languages, Persian, and European languages, have become part of modern Bengali. Okay. In fact, by the 15th century, the Bengali group of dialects came to be united by a common literary language based on the spoken language of the western part of the region now known as West Bengal. Okay, तो वस्तुतः 15वीं शताब्दी आते आते, इनफैक्ट वास्तव में 15वीं शताब्दी आते आते उपभाषाओं और बोलियों का जो बंगाली ग्रुप था, बंगाली समूह था, एक साहित्यिक भाषा के द्वारा एक हो गया था. ओके, क्या हो गया था? एक साहित्यिक भाषा के द्वारा ये क्या हो गया था? कॉमन लिटरेरी हो गया था. दस ऑल्दो बंगाली इज डराइव फ्रॉम द संस्कृत, और यह साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र के पश्चिमी भाग की बोलचाल की भाषा थी जिसे अब पश्चिम बंगाल कहा जाता है. ठीक है, हालांकि जो ये बंगाली भाषा थी, बंगाली का जो उद्भव था वो कहाँ से हुआ? वो संस्कृत से ही हुआ. It passed through several stages of evolution. All right, और यह अपने क्रम विकास की अनेक अव्यवस्थाओं से गुजरी है. कौन सी? बंगाली भाषा. ओके, ऑल्सो अ वाइड रेंज ऑफ नॉन संस्कृत वर्ड्स derived from a variety of sources, okay, including tribal languages, Persian and European languages have become part of modern Bengali. इसके अलावा गैर संस्कृत शब्दों का एक विशाल शब्द भंडार जो जनजातीय भाषाओं, पार्शियन, फारसी और यूरोपियन भाषाओं सहित अनेक स्रोतों से इसे प्राप्त हुआ और आधुनिक बंगाली का एक हिस्सा बन गया, बिकम पार्ट ऑफ मॉडर्न बंगाली, और आधुनिक बंगाली का क्या बन गया? एक हिस्सा बन गया. ओके. Early Bengali literature may be divided into two categories. All right, one indebted to Sanskrit and the other independent of it. The first includes translations of the Sanskrit epics, the Mangal Kavya, literally auspicious poems dealing with local deities, and Bhakti literature such as biographies of Chaitanya Deva. Okay, the leader of the Vaisnava Bhakti movement. All right, so early Bengali literature may be divided into two categories. तो बंगाली के जो अर्ली लिटरेचर था यानी प्रारंभिक साहित्य को दो श्रेणियों में, दो कैटेगरी में बांटा गया. वन इंडेप्टेड टू संस्कृत, एक कैटेगरी तो जो संस्कृत की क्या है? ऋणी है, मीन्स कि जो संस्कृत से ही जिसका उद्भव हुआ, एंड द अदर इंडिपेंडेंट ऑफ इट, और दूसरी उसे स्वतंत्र कहा जाता है. ठीक है, द फर्स्ट इंक्लूड्स ट्रांसलेशंस ऑफ द संस्कृत एपिक्स. तो पहले में शामिल है कि जो संस्कृत के महाकाव्यों के अनुवाद यानी द मंगल काव्य, लिटरली ऑस्पिशियस पोएम, जो कि के अनुवाद मंगल काव्य जो कि शाब्दिक अर्थों में शुभ यानी मांगलिक काव्य जो स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित है, डीलिंग विद द लोकल डेटीज, एंड भक्ति लिटरेचर, और भक्ति लिटरेचर सच एज बायोग्राफीज, जीवनी ऑफ चैतन्य देव. ठीक है, और जैसे कि चैतन्य देव की जीवनियों से, जो कि गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता थे. ओके, द लीडर ऑफ द वैष्णव भक्ति मूवमेंट. ऑल राइट, तो इनकी जीवनियाँ आदि उसमें शामिल है. तो हम कह सकते हैं कि जो बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को हम दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है. एक श्रेणी तो संस्कृत की ऋणी है, ठीक है, और दूसरी उससे स्वतंत्र है. और पहली श्रेणी जो ऋणी है वो संस्कृत महाकाव्यों के अनुसार मंगल काव्य, शाब्दिक अर्थों में मंगल काव्य का नाम है कि मंगल काव्य यानी शुभ यानी मांगलिक काव्य जो स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित होता है, और भक्ति साहित्य जैसे गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियाँ आदि उसमें शामिल हैं. ओके,
The second includes Nath literature such as the songs of Mayanmati and Gopi Chandra, stories concerning the worship of Dharma Thakur, and fairy tales, folk tales and ballads. ओके, द सेकेंड इंक्लूड्स, और दूसरी श्रेणी में कौन सा साहित्य शामिल है? नाथ लिटरेचर शामिल है स्टूडेंट्स, ठीक है। कौन सा साहित्य सम्मिलित है? नाथ लिटरेचर, जिसमें कि सच है सॉन्ग्स ऑफ मायामती, जिसमें कि मैनामती, ओके, दैट इज़ अ मैनामती, और गोपी चंद्र, मैनामती और गोपी चंद्र के गीत, स्टोरीज कंसर्निंग द वर्शिप ऑफ धर्मा ठाकुर, ओके, और ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियाँ, फेयरी टेल्स, परी की कथाएं, फोक टेल्स, लोक कथाएं, एंड बैलेड्स मीन्स गाथा गीत आदि उसमें शामिल है। कौन से? दूसरे साहित्य में, बंगाल के दूसरे साहित्य में, जो कि स्वतंत्र है, ठीक है। तो उस दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है, जैसे मैनामती, गोपी चंद्र के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियाँ, परी कथाएं, लोक कथाएं एवं गाथा गीत आदि उसमें शामिल हैं। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट पेज। मैनामती, गोपी चंद्र एंड धर्म ठाकुर, ठीक है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। द नाथ वर ascetics who engaged in a variety of yogic practice. This particular song, which was often enacted, described how Mainamati, a queen, encouraged her son Gopi Chandra to adopt the path of asceticism in the face of variety of obstacles. Dharma Thakur is a popular regional deity, often worshipped in the form of stone or a piece of wood, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं मैनामती, गोपी चंद्र और धर्म ठाकुर के बारे में। तो द नाथ वर ascetics who engaged in a variety of yogic practice. Ascetics मीन्स होता है स्टूडेंट्स, जो हम जिसे कह सकते हैं कि सन्यासी लोग, साधु संत लोग, ठीक है। तो नाथ वर, जो नाथ लोग थे वे सन्यासी होते थे, ठीक है। हु इंगेज, जो कि व्यस्त रहते थे, इन अ वेराइटी ऑफ योगिक प्रैक्टिस, जो यौगिक क्रियाएं करते थे, तरह तरह की वैरायटी में यौगिक क्रियाएं वे करते थे, ठीक है। तो जो नाथ लोग होते थे वे संत होते थे, सन्यासी होते थे, जो कि तरह तरह की यौगिक क्रियाएं करते थे। This particular song, which was often enacted, described how Mainamati, a queen, encouraged her son Gopi Chandra to adopt the path of asceticism in the face of a variety of obstacles, ठीक है। जो ये गीत थे, दिस पर्टिकुलर सॉन्ग, ये गीत विच वॉज ऑफन इनैक्टेड, ठीक है, जो कि अक्सर इनैक्ट किए जाते थे, अभिनीत किए जाते थे, और बताते थे, डिस्क्राइब हाउ मैनामती, की कैसे मैनामती एक रानी थी, जो, ठीक है, कैसे रानी मैनामती ने encouraged her son Gopi Chandra to adopt the path of asceticism in the face of a variety of obstacle। तो यह गीत विशेष जो अक्सर अभिनीत किया जाता है, यह बताता है कि रानी मैनामती ने अपने पुत्र गोपी चंद्र को, ठीक है, अनेकों ऑब्स्टिकल्स के बावजूद भी, अनेक बाधाओं के बावजूद भी संन्यास का मार्ग अपनाने के लिए किस प्रकार प्रोत्साहित किया था। धर्म ठाकुर इज़ अ पॉपुलर रीजनल डेटी, ठीक है, डेटी मीन्स होता है देवी देवता। धर्म ठाकुर वहाँ के प्रसिद्ध लोकप्रिय क्षेत्रीय देव हैं, ऑफन वर्शिप्ड इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोन और अ पीस ऑफ वुड, जिनकी पूजा अक्सर एक पत्थर या लकड़ी की मूर्ति के रूप में की जाती है। तो कौन है धर्म ठाकुर? धर्म ठाकुर वहाँ के क्षेत्रीय लोकप्रिय देवता हैं। अक्सर उनकी पूजा लकड़ी के टुकड़े या फिर पत्थर के रूप में की जाती है। और मैनामती क्यों बहुत ज़्यादा उनको माना जाता था? मैनामती ने अपने पुत्र गोपी चंद्र को बहुत सारी बाधाओं के बावजूद भी, मैनामती जो कि एक रानी थी, उन्होंने अपने बेटे को कई ऑब्स्टिकल्स के बाद भी सन्यासी जीवन अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया था। ओके, और नाथ लोग कौन होते थे स्टूडेंट्स? नाथ सन्यासी होते थे जो अक्सर बहुत सारी यौगिक क्रियाएं करते थे। ओके, The text belongs to the first category, are easier to date as several manuscripts have been
manuscripts have been found indicating that they were composed between the late 15th and mid 18th centuries. Those belonging to the second category circulated orally and cannot be precisely dated. They were particularly popular in eastern Bengal, where the influence of Brahmanas were relatively weak. Okay, the texts belonging to the first category are easier to date. अब जो पहली श्रेणी के ग्रंथों का जो काल निर्णय करना था वह अपेक्षाकृत क्या था, काफ़ी सरल था। अपेक्षाकृत बहुत सरल था। ओके, एज सेवरल मैन्यूस्क्रिप्ट्स, तो अनेकों पांडुलिपियों के अनुसार हैव बीन फाउंड इंडिकेटिंग दैट दे वर कंपोज्ड बिटवीन द लेट 15th एंड मिड 18th सेंचुरी। तो इस समय अनेकों पांडुलिपियां भी पाई गई। तो उन पांडुलिपियों के अनुसार जिनमें यह अंकित किया गया है कि उनकी रचना 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग के बीच में की गई थी। बिटवीन द लेट बिलोंगिंग टू द बिटवीन द लेट 15th मीन्स की 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और 18वीं शताब्दी के मध्य में इनकी रचना की गई थी। ओके, क्योंकि वहाँ पर क्या हुई थी, अनेकों पांडुलिपियाँ पाई गई जिसमें यह बताया गया कि उनकी रचना इस समय काल में हुई थी। दोज बिलोंगिंग टू द सेकेंड कैटेगरी सर्कुलेटेड ओरली एंड कैन नॉट बी प्रीसियसली डेटेड। ओके, एंड इसके साथ साथ दूसरी श्रेणी की जो कृतियाँ थी वे ओरली यानी मौखिक रूप से कही सुनी जाती थी। ओके, इसलिए उनका जो ओरली एंड कैन नॉट बी प्रीसियसली डेटेड, इसलिए उनका काल निर्णय सही नहीं बताया जा सकता। दे वर पर्टिकुलरली पॉपुलर इन ईस्टर्न बंगाल, विशेष रूप से वे पूर्वी बंगाल में प्रसिद्ध थे, लोकप्रिय थे। वेयर द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्राह्मणास वाज रिलेटिवली वीक, जहाँ ब्राह्मणों का जो प्रभाव था अपेक्षाकृत कम था। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक पीर्स एंड टेम्पल्स। अब हम पढ़ेंगे पीर और मंदिर के बारे में। फ्रॉम द 16th सेंचुरी पीपल बिगिन टू माइग्रेट इन लार्ज नंबर्स फ्रॉम द लेस फर्टाइल वेस्टर्न बंगाल टू द फॉरेस्टेड एंड मार्शी एरियाज ऑफ साउथ ईस्टर्न बंगाल। As they moved eastwards, they cleared forest and brought the land under rice cultivation. Gradually, local communities of fisher folk and shifting cultivators, often tribals, merged with the new communities of peasants. Okay, so peer and temples, peer और मंदिर फ्रॉम द 16th सेंचुरी। ओके, 16वीं शताब्दी में पीपल बिगिन टू माइग्रेट इन लार्ज नंबर्स फ्रॉम द लेस फर्टाइल वेस्टर्न बंगाल टू द फॉरेस्टेड एंड मार्शी एरिया ऑफ द साउथ ईस्टर्न बंगाल। ओके, तो 16वीं शताब्दी से लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कम फर्टाइल मीन्स उपजाऊ, ओके, लेस फर्टाइल कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिणी पूर्वी बंगाल के जंगली एंड मार्शी मीन्स दलदली, मार्शी मीन्स दलदली एरियाज, ठीक है, दलदली इलाकों में प्रवास करना शुरू कर दिया। ओके, दे क्लियर्ड फॉरेस्ट एंड ब्रॉड द लैंड अंडर राइस कल्टिवेशन, उन्होंने जंगलों को साफ किया और वहाँ पर उन ज़मीनों पर राइस कल्टिवेशन धान की खेती करने लगे। कल्टिवेटर ग्रेजुअली, धीरे धीरे लोकल कम्युनिटीज ऑफ फिशर फोक एंड शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स ऑफन ट्रिबल्स मर्ज्ड विद द न्यू कम्युनिटीज ऑफ पीजेंट्स। ग्रेजुअली, धीरे धीरे जो लोकल कम्युनिटीज़ थी, जो वहाँ का जो स्थानीय समुदाय था ऑफ फिशर फोक, किसका, मछुआरों का, तो धीरे धीरे स्थानीय मछुआरों का समूह एंड शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स और स्थानांतरीय खेती करने वाले जो लोग थे ऑफन ट्रिबल्स मर्ज्ड विद द न्यू कम्युनिटीज़ ऑफ पीजेंट्स, तो स्थानांतरीय खेती करने वाले लोग और स्थानीय मछुआरों ने जो अक्सर ट्रिबल होते थे, जनजाति थे, उन्होंने किसानों के नए समुदाय में आकर वे मिल गए। ओके, This coincided with the establishment of Mughal control over Bengal with their capital in the heart of the eastern delta at Dhaka. Officials and functionaries received land and often set up mosques that served as centers for religious transformation in these areas. This coincided with the establishment of Mughal control over Bengal with their capital in the heart of the eastern delta at Dhaka. ठीक है, तो इन्हीं दिनों बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया था, जिन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित की। ओके,
Officials and functionaries received land and often set up mosques that served as centers for religious transformation in these areas. Okay, और जो वहाँ के अधिकारी और कर्मचारी लोग थे उन लोगों ने भूमि प्राप्त करके अक्सर वहाँ पर क्या बना दिए, मॉस्क यानी मस्जिद बना दिए. ओके, मस्जिद बना दिए और उन इलाकों के धार्मिक रूपांतरण के केंद्रों के रूप में वे काम आती थी. ओके, और वे क्या होती थी, उनमें काम आती थी. The early settlers sought some order and assurance in the unstable conditions of the new settlements. ठीक है, और जो वहाँ के लोग थे, द अर्ली सेटलर्स, ठीक है, तो जो वहाँ पर प्रारंभ में बाहर से आकर यहाँ बसने वाले लोग थे, वे अक्सर इन अस्थिर परिस्थितियों में, इस विषम परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्थाएं तथा लोगों से न्यू सेटलमेंट्स एंड अनस्टेबल कुछ व्यवस्थाएं चाहते थे. ठीक है, और कुछ आश्वासन चाहते थे. ऑलराइट, एश्योरेंस चाहते थे. These were provided by community leaders who also functioned as teachers and educators and were sometimes ascribed with supernatural powers. People referred to them with affection and respect as peers. Okay, so students, these were provided by community leaders who also functioned as teachers and educators. ठीक है, तो जो यहाँ पर ये सुख सुविधाएं तथा आश्वासन उन्हें जो समुदाय के नेताओं ने प्रदान की, तो ये जो नेता थे शिक्षक और निर्णायकों की भूमिका को अदा करते थे. मीन्स ये निर्णायक और भूमिकाओं के निर्णायक और टीचर की भूमिका का वहाँ पर निर्वाहन करते थे. समटाइम्स एस्क्राइब्ड विथ सुपरनेचुरल पावर्स. ठीक है, और ये कभी कभी ऐसा समझा जाता था कि नेताओं के पास सुपरनेचुरल पावर यानी अलौकिक शक्तियाँ हैं. पीपल रेफर टू दैम विद अफेक्शन एंड रिस्पेक्ट एज पीस. और लोग इनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, स्नेह और अफेक्शन, आदर से. ठीक है, स्नेह और आदर से लोग इन्हें क्या कहते थे, पीर कहते थे. ओके, दिस टर्म इंक्लूडेड saints of Sufis and other religious personalities, daring colonizers and defied soldiers, various Hindus and Buddhist deities, and even animistic spirits. The cult of peers became very popular and their shrines can be found everywhere in Bengal. This term included saints or Sufis and other religious personalities. Okay, तो इस पीर श्रेणी में संत या सूफी और अन्य धार्मिक महानुभाव, साहसी एंड उपनिवेशी. ओके, एंड कॉलोनाइजर मीन्स उपनिवेशी, साहसी उपनिवेशी, देवत्व प्राप्त डिफाइड सोल्जर्स, देवत्व प्राप्त सैनिक और योद्धा, विभिन्न हिंदू एवं बौद्ध देवी देवताओं और यहाँ तक कि उसमें जीवात्माएं भी शामिल थी. इवन एनिमिस्टिक स्पिरिट्स यानी जीवात्माएं भी उसमें शामिल थी. द कल्ट ऑफ पीर्स बिकम वेरी पॉपुलर एंड देयर श्रीन्स कैन बी फाउंड एवरीवेयर इन बंगाल. तो पीरों की जो पूजा थी स्टूडेंट, द कल्ट ऑफ पीर बिकम्स वेरी पॉपुलर. पीरों की जो पूजा पद्धतियाँ थी बहुत ही लोकप्रिय हो गई थी, और जो उनके श्रीन्स थे, श्रीन्स मीन्स उनके समाधि स्थल या उनकी जो मज़ारें थी, वे सबसे अधिक फाउंड एवरीवेयर इन बंगाल, वे बंगाल में हर जगह पाई जाती थी. ठीक है, तो इस पीर श्रेणी में, ठीक है, जो उनको पीर मानते थे, उस पीर श्रेणी में संत या सूफी और अन्य धार्मिक लोग, साहसी उपनिवेशी, देवत्व प्राप्त सैनिक एवं योद्धा, विभिन्न हिंदू एवं बौद्ध देवी देवता और यहाँ तक कि एनिमिस्टिक स्पिरिट्स मीन्स जीव आत्माएं, ठीक है, जीवात्माएं भी शामिल थे. और पीरों की पूजा पद्धतियाँ बहुत ही लोकप्रिय हो गई और उनकी मज़ारें बंगाल में सर्वत्र पाई जाने लगी. ओके, Bengal also witnessed a temple building spree from the late 15th century which culminated in the 19th century. We have seen chapter 2 and chapter 5 that temples and other religious structures were often built by individuals, okay, by individuals or groups
who were becoming powerful to both demonstrate their power and proclaim their piety. Many of the modest brick and terracotta temples in Bengal were built with the support of several low social groups, such as the Kolu oil pressures and the Kansari bell metal workers. The coming of the European trading companies created new economic opportunities. Many families belonging to these social groups availed of these as their social and economic position improved. Okay, so Bengal also witnessed a temple building spree from the late 15th century, which culminated in the 19th century. Okay, तो बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जो था काफ़ी जोरों पर था, ठीक है, जो 19वीं शताब्दी में आकर समाप्त हो गया. वी हैव सीन, हमने देखा चैप्टर 2 और 5 में दैट टेम्पल्स एंड अदर रिलीजियस स्ट्रक्चर्स वर ऑफन बिल्ट बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स हु वर बिकमिंग पावरफुल टू बोथ डेमोस्ट्रेट देयर पावर एंड प्रोक्लेम देयर पिटी. ठीक है, तो हमने चैप्टर 2 और चैप्टर 5 में देखा स्टूडेंट्स कि मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों और समूहों द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली बन रहे थे, और वे इन मंदिरों के द्वारा यह प्रूफ करना चाहते थे या डेमोस्ट्रेट करना चाहते थे कि इसके माध्यम से कि अपनी शक्ति और भक्ति भाव को वो लोगों को दिखा सकें. ओके, तो वे अपनी शक्ति का, अपने वैभव का, अपने धन का, अपनी भक्ति भाव का इनके द्वारा प्रदर्शन करते थे. ओके, Many of the modest brick and terracotta temples in Bengal were built with the support of several low social groups such as the Kolu oil pressures and the Kansari bell metal workers. Okay, और इस प्रकार बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी गारे से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूहों जैसे कालू यानी तेली, कंसारी यानी घंटा धातु के कारीगर आदि के समर्थन से बने थे. The coming of the European trading companies created new economic opportunities. Okay, many families belonging to these social groups availed of these. और यूरोप की ये जो व्यापारिक कंपनियां थी, इन व्यापारिक कंपनियों के आ जाने से नए आर्थिक अवसर क्या हुए, वहाँ पर पैदा हुए, और इन सामाजिक समूहों से संबंधित अनेक परिवारों ने इन अवसरों का लाभ उठाया. ओके, सोशल ग्रुप्स अवेल्ड ऑफ दिस एज देयर सोशल एंड इकोनॉमिक पोजिशन इम्प्रूव्ड, और जिससे कि उनकी जो इकोनॉमिक पोजीशन थी, ठीक है, उन लोगों की जो सामाजिक और सोशल एंड इकोनॉमिक जो पोजीशन थी वो क्या होती गई, इम्प्रूव होती गई, सुधरती चली गई. ओके, हियर इज स्टूडेंट्स एनिमिज्म. एनिमिज्म मीन्स जीववाद. ठीक है, जीववाद तो यह एट्रीब्यूशंस ऑफ लिविंग सोल और टू प्लांट्स इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स एंड नेचुरल फिनोमेना. तो हम इसे जीववाद को कहते हैं कि यह मानना है कि यह पेड़ पौधे, जड़ वस्तुओं और प्राकृतिक घटनाओं में भी जीवात्मा होती है. ठीक है, तो जीववाद यानी एनिमिज्म. एनिमिज्म हम इसे कहते हैं कि एनिज्म मीन्स जीववाद होता है. जीववाद मतलब यह मानना कि पेड़ पौधे, जड़ वस्तुओं और प्राकृतिक घटनाओं में भी क्या होती है, जीवात्मा होती है. नाउ कंपेयर द टेम्पल सोन हेयर विथ दैट इन चैप्टर 2. अब यहाँ पर स्टूडेंट्स जो पिक्चर्स दिए गए हैं तो इसका, इन टेम्पल्स का आप चैप्टर 2 के साथ कंपेयर करिए. यहाँ दिए गए मंदिरों की तुलना, जो चैप्टर 2 में कुछ मंदिर दिए गए हैं तो उनसे तुलना कीजिए. अब जो फिगर 11 है, जो चित्र नंबर 11 है, तो इसमें आप देख सकते हैं दिस इज़ अ डबल रूफ्ड थैच्ड हट एंड फिगर 12 अ 4 रूफ्ड टेम्पल्स विथ अ टावर. ठीक है, हम देख सकते हैं कि जो ये वाला पिक्चर है लेफ्ट में, ये एक दोचला छप्परदार झोपड़ी है. ठीक है, और दाएं में एक चौचाला मंदिर है. चौचाला मंदिर, 4 रूफ्ड टेम्पल्स. ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, टुडे क्लास इज ओवर. टुमारो आई विल बी बैक with new points of this chapter. So till then students, revise your work, okay, and properly learn, and take care students. Bye bye, have a nice day.